So my screen is visible. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So we have talked about the Boolean matrix. What is the Boolean matrix? It shows the relation A comma A means 1 is related to 1. So A11 is stand for 1. A comma B means A related to B, so that we can write here 1. B comma B is there, so we write here 1. B comma A is not present, then we write here 0. So this kind of representation is called the Boolean matrix. Then we discuss about the join and meet. Join means A or B. दोनों में से किसी के पास भी है, then we give one. And meet मतलब and, A and B. So if both have one, then we put 1, otherwise we put 0. So join and meet we discuss. Join means A or B, meet means A and B, and we discuss about the XOR. This is the Boolean product. Then we discuss about the theorem 1, which is very important. A cross B union C is equals to A cross B union A cross C. So what strategy we follow to prove it? We take the left hand side first. We put left hand side is a subset of right hand side initially. Then we prove right hand side is also a subset of the left hand side. Then from the 1 and from the 2, we say if left hand side is a subset of right hand side and right hand side is also a subset of left hand side, that means they both are equal. In this way we prove, and initially because it is a relation, so we are taking two elements at a time, x comma y. X comma y belongs to A cross B union C. That means X belongs to the A and Y belongs to the B union C. In this way, we prove left hand side is a subset of right hand side, and in the reverse, we prove the same thing. You can use the same step in the reverse order. Okay. And next, I hope you did. Yeah, you did it? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So I will explain the C part. Okay. C part. What is this? A cross B minus C equal to A cross B minus A cross C. A cross B minus C equal to A cross B minus A cross C. Right? Can you remember, or do you remember what is A minus B? Element Yes, present ma'am. in A Element in but A, not not in. in B. Yes, element belongs in B but not in C. Not in C. C में नहीं है. That's why it is B minus C. Okay? तो हम proof लिखेंगे इसका. Let x comma y belongs to A cross B minus C. आप मेरे साथ साथ लिखते जाइए. This implies x belongs to A and y belongs to B minus C. This implies x belongs to A and y belongs to B, but y does not belongs to C. लिखा? This implies क्या? मैम ये बट के यूज क्या अपन माइनस के लिए. X belongs to A, y belongs to B, but y does not belongs to C. This implies x comma y belongs to A cross B, but x comma y does not belongs to A cross C.
बिकॉज y c में नहीं है. This implies x comma y belongs to a cross b because a cross b में है लेकिन a cross c में नहीं है. This implies हम लेके कहाँ चले थे उसको? हम लेके कहाँ चले थे? a cross में. This implies a cross b minus c is a subset of a cross b minus a cross c. This implies left hand side is a subset of right hand side. So you start with this expression in the reverse order and you can prove that right hand side is a subset of left hand side. मैम हाँ बेटा. अपन ने थर्ड स्टेप क्या? मैम अपन ने यहाँ पर ये लिखा है ना x, y belongs to a cross b but x, y does not belong to a, c. हाँ. पहले एक स्टेप ये तो आएगी x, y x belongs to a and y belongs to b but x belongs to a but y does not belong to b. कोई दिक्कत नहीं है ना, एक ही बात है. मैंने वो जब x a में बिलोंग कर रहा है, y b में बिलोंग कर रहा है, तो y does not belongs to c. नहीं पंडा से दे दो ना, दे देना. लिखा. In this way we can prove many of the proofs here and you can prove anything without any fail. So if we discuss about the second theorem, बहुत सिंपल है. इधर भी देखो तुम, दिख रहा है? The non-void set A, B, C, D prove A is a subset of B and B is a subset of D. This implies A cross B is also a subset of B cross D. देखो, so letting A is a subset of B and C is a subset of D. This is also given. It is given to you. So let x comma y belongs to A cross C. This implies x belongs to A and y belongs to simply. And if x belongs to A, x also belongs to B because B, A is a subset of B. इसी तरीके से if y belongs to C, y belongs to D also because C is a subset of D. So x belongs to A, x belongs to A, x belongs to B because x A में भी है, B, A is a subset of B, तो x B में भी है. Similarly, y belongs to C, y belongs to D, so that x comma y belongs to B cross D and x comma y belongs to A cross C also. So we can prove this. So this is a small line question. देखो लिख लो इसे. हाँ बेटा. मैम ये हमने A क्रॉस C से क्यों स्टार्ट किया है? x comma y belongs to. Because we have to prove it ना. तो एक साइड तो हम लेके ही चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड. मैम ये void और non void क्या है? मैम ये तो राइट हैंड साइड में है. हाँ हाँ, कुछ भी ले सकते हो तुम. पहले एक ही बात है वो तो.
हाँ हाँ, ये कौन पूछ रहा है? वॉइड नॉन वॉइड क्या है? जरा अपने कान पकड़ो तुम। वॉइड और नॉन वॉइड का मतलब होता है एम्प्टी सेट, जिससे हमने शुरुआत की थी पहले दिन। मैम नहीं मैम, इसमें तो ये सारे के लिए है या फिर मैम स्पेसिफिक, जैसे वॉइड वाला जो है तो उसमें नॉन वॉइड और क्या पूछ रहे हो? नॉन वॉइड का मतलब नॉन है वॉइड कि मतलब कि ए बी सी डी एटलीस्ट एक एलिमेंट जरूर है इनमें, दे आर नॉट एम्प्टी सेट्स। अभी तुम एम्प्टी सेट को किसी का भी सबसेट बोलोगे तो उसके लिए कोई थ्योरम प्रूव करने की जरूरत नहीं है ना। एम्प्टी सेट इज ऑलवेज अ सबसेट, इसीलिए यहाँ पे स्पेशली नॉन वॉइड लिखा है। ठीक है, नॉन वॉइड मतलब एटलीस्ट दे हैव वन एलिमेंट इन दैट। इसी तरीके से देखो और भी थ्योरम्स हैं, थ्योरम 3 है, और ये सब आपको रीड करने हैं, सब समझ में आ जाएगा। और इन्हीं थ्योरम्स में से आई विल गिव इन दी क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन की और आगे चीजों की। So we discuss about the definition of relation. You have already written in your copy कि relation क्या है. This is a ordered pair. How we define it. We have already discussed about everything. Domain, range. ये पूरा एक लेक्चर में आपका ले चुकी. Identity relations क्या होते हैं जो खुद से related होता है. We have discussed everything. Inverse relation क्या होता है. चलो यहीं से शुरू करते हैं. So we have discussed everything. पुराने PPTs में आपके पास होगा भी. On 20th and 22nd we have discussed about this. Okay, what is an inverse relation? Inverse relation means A related to B. So A comma B belongs to the set A. Similarly R inverse B comma A. A का B के साथ में relation है तो B का A के साथ में relation है. That is called a inverse relation. Let R be a relation from a set A to B. तो R inverse कहाँ से होगा? B से A में होगा. बस ये एक important चीज तुम्हें याद रखनी है. If R is a relation from set A to B, then R inverse is from B to A. This is called a inverse relation. ठीक है, ये क्या कहता है? Domain of R1 is equal to the range of R. please repeat. Yes, I am repeating. If relation R is given from A to B or it is A cross B, then R inverse is B cross A. Or you can say if R is from A to B, then R inverse is B to A. Okay, this is called inverse. Means देखो यहाँ जो डोमेन है, यहाँ जो डोमेन है R में, जो R के लिए डोमेन है वो R इनवर्स के लिए क्या है? को डोमेन. हाँ, रेंज कह सकते हो ये तुम, ये रेंज कह लो, रेंज है. और यहाँ जो रेंज है वो उसके लिए यहाँ क्या बन गया? डोमेन बन गया. तो दिस इज अब क्या है आगे? आर रिलेटिव सेट्स ऑफ एलिमेंट. तो हम सेट्स बना सकते हैं. कैसे बनाते हैं उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा दे रखा है. लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी. ये आपको हमेशा डिफाइन होगा कि कहाँ से कहाँ रिलेशन है. क्यों डिफाइन होगा? बिकॉज आर ऑलवेज रिप्रेजेंट अ ऑर्डर्ड पेयर. सो आर रिप्रेजेंट अ ऑर्डर्ड पेयर. सो A means the first element and B means the second element. So it is always defined, it is a relation from A to B. And X belongs to A, then R relative set of X denoted by Rx. तो जो भी एलिमेंट का सेट होगा, उसकी इमेजेस का सेट होगा, उसको हम किससे दिखाएंगे? Rx से दिखाएंगे. In set of these elements of B which are related
to the particular element x. So we can represent like this. So Rx means the set of range x comma y belongs to R, यानी belongs to R, ये एक सेट को बिलोंग करते हैं जो रिलेटेड है एक दूसरे से x comma y. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है ए है 1 2 3 4, बी है आर एस टी. तो 1 का आर के साथ में, 1 का टी के साथ में, 1 का एस के साथ में, ये पूरा एक रिलेशन यहाँ पे डिफाइन है, दे रखा है, हमने नहीं बनाया है. अब ये कहता है कि R1 क्या है, S, T. फर्स्ट रिलेशन कितना दे रखा है, सेकंड रिलेशन क्या है, 1 का किस किस के साथ में, S के साथ में, T के साथ में है, 2 का किसके साथ में है, 4 के साथ में है, S के साथ में है. हाँ, 2 का किसके साथ में, ये 4 लिखा है ना. 2 का SN4 मैम. हाँ, 2 का SN4, लेकिन यहाँ पे मेरे हिसाब से 4 गलत लिख दिया इन्होंने. 1 R का हो भी सकता है, चलो, क्योंकि सेट रिलेशन तो कुछ भी हो सकता है. एंड 4 का इन्होंने लिखा है किसके साथ में, T के साथ में. ओके, तो मुझे लगता है ये R छपना था, 4 की जगह ये गलत छप गया. तुम इसको R लिख लो, ये 4 नहीं है, ये R है. मैम स्मॉलर R है, ये 4 नहीं है. स्मॉल वाला आर ना. हाँ, 4 वाला आ रहा है. तो आगे चलते हैं. ग्राफ ऑफ अ रिलेशन, कि रिलेशन को हम ग्राफ से किस तरीके से डिनोट करते हैं. तो दिस इज अ वे टू डिनोट द ग्राफ. क्या तुम इसे समझ सकते हैं? तो पहले ये एग्जांपल ले लेते हैं, उसी से तुम्हें समझ में आएगा. लेट अ रिलेशन R फ्रॉम अ सेट A to B is a subset of the product set A cross B. Before R can be sketched on a coordinate system पे डायग्राम सिमिलर टू दैट A क्रॉस B. ये एक एग्जांपल लेके इन्होंने समझाया है. लेट A is A, B and B is 1 2 3, और इन दोनों की रिलेशनशिप क्या होगी ये यहाँ पे डिफाइन है. A, 1, A, 2, A, 3, B, 1, B, 2, B, 3. बहुत सिंपल सारे रिलेशंस यहाँ पे गिवन हैं. अब आपको ये ड्रॉ करना है. तो आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस पे यहाँ पर A लिया है, यहाँ पर आपने B लिया है. A related to 1 because it is A and it is B. So this is 1 2 3, 3 elements are there on the B set. A 1 से related है, so you are making it 1 point. A 2 से भी related है, A 3 से भी related है, you make it like this. Similarly B1, B, 2 and B, 3. अगर ये B, 3 नहीं होता तो हम यहाँ पे ये पॉइंट नहीं लगाते. तो दिस इज कॉल्ड अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन. और हम ऐसा भी कर सकते हैं, हम ऐसे भी बना सकते हैं. A और B, A में हमारे पास क्या क्या है, A और B. B में हमारे पास क्या है, 1 2 3. A किससे रिलेटेड है, 1 से. A किससे रिलेटेड है, 2 से. A किससे रिलेटेड है, 3 से. B किससे रिलेटेड है, 1 से. B किससे है, 2 से. B किससे है, 3 से. दिस इज ऑल्सो अ, क्या कहते हैं, रिलेशन ग्राफ.
आई मिस्ड इट, इसको कर लेना, दिखा ही नहीं रहा मुझे। Okay, have you noted? Yes, ma'am. चलो, now we go to the adjacency matrix. ये थोड़ा सा बोरिंग है। मैम एक सेकंड वो ग्राफ दिखाना। हाँ, हम इस ग्राफ का नेम सिंपली ग्राफ है या रिलेशनल ग्राफ लिख सकते हैं? ये सिंपली रिलेशन ग्राफ है। ये अपन बिना मतलब हम अपनी तरफ से नहीं बना सकते, जो भी रिलेशन हमको गिवन होगा उसके लिए बनाएंगे हम। ये डोमेन ए मान के कोडोमेन बी मान के उसी हिसाब से बनाना है ना? मानना नहीं है, ये दिया हुआ है, दिया हुआ है, जो दिया हुआ है, जो दिया हुआ है हमको। ये जो अलजेब्रा है, मतलब हम अपनी तरफ से इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। मान लो ये सारे रिलेशंस नहीं गिवन होते, इसमें से b,2 नहीं होता, b का 2 के साथ में कोई रिलेशन नहीं है, तो वी स्किप दिस मैश, हम स्किप कर देते हैं। हम अपनी तरफ से यहाँ पे कुछ भी नहीं बना सकते। ठीक है, अब मैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स सिखाऊं, इसके पहले मैं कुछ तुम्हें अच्छे टॉपिक पढ़ाना चाह रही थी, ये तो बाद में कराऊंगी। मैं कराना चाहती थी ये टॉपिक, ये लिखो तुम, वो मैट्रिक्स तो इजी है, हो जाएगा बाद में। ये करो तुम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाइनरी रिलेशन। A relation R between pair of elements of A is called binary relation. A relation R between pairs of elements of A is called binary relation. Let A be any set and R be the set of all point x, y A क्रॉस A का पार्ट है, यानी x भी कहाँ है A में, y भी कहाँ है A में, for which x equals to y, और दोनों एलिमेंट कैसे हैं, सेम है, then the relation R is known as equality relation in the set A. A के दोनों एलिमेंट A, A यानी आपस में ही रिलेटेड हैं, then it is called the equality relation. और आप इस इक्वलिटी रिलेशन को इस डेफिनेशन से समझ सकते हैं। तो ए का ए से ही रिलेशन इज कॉल्ड द बाइनरी, सिंपल वे में अगर आप इसको समझोगे तो। अभी आगे हम इसको नए तरीके से पढ़ेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, एंड दिस वे। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन। रिफ्लेक्सिव एक बार ये डेफिनेशन दिखाना बाइनरी रिलेशन की। किसकी, उसके ऊपर की, बाइनरी की? यस मैम। मैम इसमें सिर्फ डेफिनेशन ही लिखनी है ना बाइनरी रिलेशन की? हाँ, कुछ नहीं, सिर्फ डेफिनेशन, वो भी तुम्हें समझनी है कि बाइनरी क्या कह रहा है, ये किसको कह रहा है, बाकी तुम्हें काम यहाँ से आएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये तीन प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, और इस पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। क्या क्या डिपेंड करता है? रिफ्लेक्सिव एक तरीके से आप समझ सकते हैं अपने आप को ही आईने में देखना।
तो इफ ए रिलेटेड टू ए देन इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव. ए क्रॉस ए के एलिमेंट अपने आप से ही रिलेटेड हैं, देन इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव. सिमेट्रिक मतलब अगर ए कॉमा बी अगर रिलेशन में है, ए आर बी और बी आर ए भी रिलेशन में है, देन इट इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन. ट्रांजिटिव का मतलब है कि सेट ए बी से रिलेटेड है और बी सी से रिलेटेड है और सी ए से भी रिलेटेड है, देन इट इज कॉल्ड द ट्रांजिटिव रिलेशन. ओके, ये एक रफ आइडिया मैंने आपको दिया है, हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे. रिफ्लेक्सिव मीन खुद से खुद का रिलेशन. सिमेट्रिक मीन जैसा मेरे तुम्हारे साथ रिलेशन है, तुम्हारा भी मेरे साथ उतना ही इंटेंसिटी का रिलेशन है, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन. मैं एज ए स्टूडेंट तुम्हें प्यार करूं, तुम्हें तुम्हारी केयर करूं, तुम एज ए टीचर मुझे प्यार करो, मुझे केयर करो, देन इट इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन, है ना. ट्रांजिटिव रिलेशन कि ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, देन इट इज कॉल्ड द एंड सी रिलेटेड टू ए, दैट इज कॉल्ड अ ट्रांजिटिव रिलेशन. कोई तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है, उसका बहुत अच्छा दोस्त तुम्हारा भी दोस्त है, दैट इज कॉल्ड अ ट्रांजिटिव रिलेशन. दोस्त का दोस्त, तो ये ए है, इसका बहुत अच्छा दोस्त यहाँ बी में है और बी का बहुत अच्छा दोस्त सी है, लेकिन सी और बी और ए जब मिलते हैं तो सी और ए भी दोस्त हैं, दैट इज कॉल्ड द ट्रांजिटिव रिलेशनशिप. ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट द ऑफिशियल. क्या बेटा? Reflexive repeat करो. Reflexive mean खुद का खुद से relation. Okay, I will explain the official definition or mathematical explanation of the reflection. A relation are on a non-void set. ये टर्म आपको अब यहाँ जरूर मिलेगी. Non-void मतलब empty set नहीं है. At least there is a one element. On a non-void set, A is known as a reflexive relation if each member of set A is related to itself. खुद का खुद से कनेक्शन. हम अपने आप से भी प्यार करें, हम अपने आप से भी एक जुड़े, हम अपने आप को भी जाने, that is called a reflexive. ठीक है, लिख लो इस डेफिनेशन को बिल्कुल हाथ के हाथ और समझ लो. एग्जाम्पल भी कोट किया हुआ है नीचे. लेट ए बी द सेट ऑफ स्ट्रेट लाइन इन अ प्लेन. लेट ए बी अ सेट ऑफ स्ट्रेट लाइन इन अ प्लेन. द रिफ्लेक्शन आर इन ए डिफाइंड बाय एक्स इज पैरेलल टू वाई. एक्स इज पैरेलल टू वाई is reflexive since every straight line is parallel to itself. अब जैसे ये कह रहा है कि जो लेस देन का साइन है या ग्रेटर देन का साइन है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है. क्यों? इफ आई एम एल्डर देन यू, यू कांट बी एल्डर देन मी. या मैं अपने आप से बड़ी नहीं हो सकती, ये रिलेशन मेरे लिए नहीं हो सकता. इफ आई एम एल्डर देन यू देन आई एम इक्वल टू मी, नॉट ग्रेटर देन मी. तो मैं रिफ्लेक्सिव का रिलेशन ये नहीं हो सकता. Ma'am, please scroll up. सिमेट्रिक पर आ जाते हैं. एग्जांपल्स भी लिख लेना. समझ लो तुम, ये पीडीएफ तो तुम्हारे पास है ही, पढ़ लेना. एक एग्जांपल लिख लो ताकि तुमको शॉर्ट में अपनी मतलब कहते हैं ना इजी लैंग्वेज में एक एग्जांपल लिख लो ताकि तुम समझ पाओ ए रिलेटेड टू ए का क्या मतलब है रिफ्लेक्सिव का, है ना. बाकी तो बुक की पीडीएफ है, आप जब भी चाहें इसको खोल के पढ़ लेना. सिमेट्रिक रिलेशन देखो क्या है. अ रिलेशन आर ऑन अ नॉन वॉइड सेट ए इज नोन एज सिमेट्रिक रिलेशन इफ x related to y, this implies y related to x.
अगर x y से रिलेटेड है, y भी x से रिलेटेड है, देन इट इज कॉल्ड अ सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, हम अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट दें और पेरेंट्स हमारी बात मानते हैं या हमको प्यार करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, तो हमारी भी एक टीचर स्टूडेंट की या एक मेंटर और एक स्टूडेंट की रिलेशनशिप भी कैसी होती है? सिमेट्रिक रिलेशनशिप होती है। यू बिकॉज I related to you, that's why I am a teacher, and you related to me, that's why you are a student. तो तुम स्टूडेंट हो, मैं टीचर हूँ, ये भी एक रिलेशनशिप, सिमेट्रिक रिलेशनशिप है, बिकॉज आई रिलेटेड टू यू एंड यू रिलेटेड टू मी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही तुमसे जुड़ी हूँ, तुम नहीं जुड़े हो, और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ तुम स्टूडेंट हो तो तुम ही जुड़े हुए हो, मैं तुमसे जुड़ी हुई नहीं हूँ। तो दिस इज अगेन अ सिमेट्रिक रिलेशनशिप। और फिर सिमेट्रिक रिलेशनशिप में रिलेशनशिप भी कैसी होती है? सेम होती है, जैसा तुम मुझे करोगे बिहेव, आई रिवर्ट दैट, और बिल्कुल ऑपोजिट भी है, व्हाट आई बिहेव विद यू, यू रिवर्ट इट बैक। ओके, सो दिस इज कॉल्ड अ सिमेट्रिक। इसके बाद देखो एक है असिमेट्रिक रिलेशनशिप। थर्ड ये है असिमेट्रिक रिलेशनशिप। Our relation R on a A is said to be a symmetric if A related to B but B not related to A. A B से related है लेकिन B A से related नहीं है, that is called a asymmetric relationship. Then transitive देखो क्या है? A relation on a set A is said to be transitive for x, y, z। देखो तीन एलिमेंट लिए हैं यहाँ, x, y, z। x related to y and y related to z, this implies x related to z। If there are three lines, x parallel to y, y parallel to z and z parallel to x, तो सिमेट्रिक लाइन का जो रिलेशनशिप हुआ, इफ देयर इज अ, ये एक स्ट्रेट लाइन है, वी आर टेकिंग इट एज x, this is again another straight line and this is another. If I am saying x is parallel to y, y is parallel to z, this implies x parallel to z। और एक और छोटा सा एग्जांपल तुम इस पे कोट कर सकते हो, if x less than y and y less than z, this implies x always less than z। सपोज ये 2 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 4 है, then this implies 2 is always less than 4। तो this is again one example। आप अपनी समझ से और भी एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको रिलेशन क्या शो करना है? ट्रांजिटिव में आपको शो करना है x रिलेटेड टू y है एंड y रिलेटेड टू z है, दिस इम्प्लाइज x ऑल्सो रिलेटेड टू z। ये आपको शो करना है। यहाँ पे तीन सेट हमारे पास होंगे, a, b और c, और हमको यही रिलेशन शो करना है कि a b से रिलेटेड है, b c से रिलेटेड है एंड अगेन c a से रिलेटेड है। दैट इज कॉल्ड अ ट्रांजिटिव रिलेशनशिप। फिर उसके बाद एंटी सिमेट्रिक भी है। अ रिलेशन R ऑन अ सेट A इज सेड टू बी एंटी सिमेट्रिक इफ whenever x does not, then either x related to y or y related to x। So if antisymmetric, if x related to y, y related to x, और दोनों एक ही हो जाए, दोनों सेम ही हो जाए, that is called antisymmetric। मैम एंटी सिमेट्रिक रिपीट कर दीजिए। देखो लास्ट लाइन पे गौर करो और यही तुम लर्न करो तो इजी रहेगा तुम्हें। A relation R on a set A is said to be antisymmetric if R related to y and y related to x
मतलब x y से रिलेटेड है, y x से रिलेटेड है और दोनों सेम ही है, तो ये तो एक तरीके से रिफ्लेक्सिव ही हो गया ना। तो ये अलग अलग एलिमेंट कहाँ हुए? इट इज कॉल्ड एंटीसिमेट्रिक। So ma'am, we can say that reflexive relation is anti-symmetric relation. इफ वी आर, देखो वहां पर अपन दो एलिमेंट नहीं ले रहे, अपन ए के साथ में ही रिलेशन ले रहे हैं, तो यहाँ बात को है ना कहने का तरीका थोड़ा सा अलग है, तो हम उनको मिक्स नहीं कर सकते बातों को। देखो वहां कह रहा है कि खुद का खुद से रिलेशन है ना, यानी कि वहां पे दो एलिमेंट नहीं ले रहे हम, एलिमेंट तो दोनों एक ही एलिमेंट ले रहे हैं ए, यहाँ पे अब एलिमेंट दो ले रहे हैं, लेकिन ये बता रहे हैं कि वो दो एलिमेंट सेम हैं। तो क्या है, बात को कहने का तरीका अलग है, इसलिए वो फर्स्ट पॉइंट है और ये फोर्थ पॉइंट है, तो मैथमेटिकली इट इज नॉट सेम। अगर मैं तुमसे कहूं कि दो सेट इक्वल हैं, ए क्रॉस बी यूनियन सी एंड ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, ये प्रूव कर चुके हैं हम, तो दोनों देखो अलग अलग चीजें हैं। वैसे तो ए क्रॉस बी यूनियन सी और ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, वैसे हम इक्वल प्रूव कर चुके हैं, लेकिन दोनों अलग अलग हैं, है ना। तो उस केस में दैट इज कॉल्ड एंटीसिमेट्रिक, वो रिफ्लेक्सिव नहीं है उसमें, क्योंकि वो दोनों अलग एंटिटी हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा लैंग्वेज का फर्क है, क्योंकि ये अलजेब्रा है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, तो यहाँ पे चीजें थोड़ा बताने का तरीका अलग होता है, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट वे है। आपको समझना है डीप में जाके कि ये दोनों अलग अलग बातें कह रहे हैं, और यहाँ पे वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ सिंगल एलिमेंट, एक्चुअली ये पूरे सेट के बारे में बात हो रही है। अभी हम आगे बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे, इट विल मेक यू क्लियर। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। यस मैम, आज इतना ही करा दीजिए। तो अब आपको क्या करना है, आपको